تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، گڑ گڑا کر درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں۔ ہم شکر گزار ہیں جناب حضرت عثمان اللہ خان صاحب کا بھی جو کہ پاکستان سے بذریعہ اسکائپ ہر اتوار ہمارے ساتھ لاہور سے اس پروگرام میں لائیو آتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی پتے کی بات اور جو کہ میرے دل سے بہت قریب ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح کون سی چیزیں آپ اختیار کریں کہ آپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں اور آپ ہنسی خوشی جو بھی تھوڑی بہت زندگی مختصر سی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ خیر خیریت سے عافیت کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہماری گزر جائے۔ اور وہ پتے کی بات ہے خواہشات کا کم کرنا۔ یہ آپ آزما کے دیکھیے گا، جتنی خواہشات بڑھائیں گے آپ اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ خواہشات کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہوتا۔ خواہشات کو ہم جتنا کم کریں گے، جتنا محدود کریں گے، جتنا مختصر کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے کہ غالب کا بھی ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اپنے موجودہ حالات میں خوش رہنا ہمیں آ جائے، جسے قناعت بھی کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ جو بھی اللہ نے آپ کے لیے موجودہ حالات ہیں، آپ کے جس طرح بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس میں ہی خوش رہنا سیکھ لیں، اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے آگے ہیں، ان کی طرف دیکھیں، اور دنیاوی معاملات میں ان کی طرف دیکھیں جو آپ سے کم تر ہیں، جن کو اللہ نے کم دیا ہے، تو آپ کو کبھی پریشانی نہ ہوگی۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے ہمارے حالات یہ ہیں کہ دنیاوی معاملات میں تو ہم اپنے سے جو بڑھ کے ہیں ان کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اور دینی معاملات میں ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ تو اس طرح آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو اپنی ترجیحات ذرا بدل لیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت ہی پرسکون اور پر لطف ہو جائے گی۔ حضرت آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک ہے جی خواہش کرنا، اور ایک ہوتا ہے خواہش پہ اصرار کرنا۔ جی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ہمیں خواہش کرنی چاہیے، ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن اپنے جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ای میلز آتی ہیں کہ جی ہمارے مالی حالات خراب ہیں، تو بعض مرتبہ وہ جب کسی کی ای میل آئے یا فون آئے اور تھوڑی سی ہم اس سے معلومات لیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کس طرح خراب ہے، تھوڑا سا سمجھائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی 2 گیس اسٹیشن ہیں ہمارے لیکن حالات ہمارے خراب ہیں۔ یعنی بجائے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ناشکری والی باتیں کہ جی وہ ہمارے تو وہ خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرا ایک حضرت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خواہشات، جیسے گاڑی ہے کسی کے پاس، اب اس سے بڑی گاڑی موجود ہے ہر کے پاس، اور وہ لے لیتے ہیں تو پھر اس سے بھی بڑی گاڑی ہے، گھر ایک بڑا گھر ہے، ہاں یہ اس سے تو بھی بڑا گھر ہے، تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو آپ تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے اگر آپ شکر گزار نہیں ہوں گے ہاں تو۔ جی بالکل بالکل جی، کبھی بھی نہیں، ہے تو سلسلہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو یہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہمارا یہ دین کے ساتھ ہم ٹچ نہ ہو تو اس طرح تو بندہ کبھی بھی کسی حال میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ جی یہ تو دین ہی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ سارا کچھ بتاتا ہے، ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ جس حال میں بھی ہو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو ہر بندے کا مقدر فرق ہے، ہر بندے کو اپنے مقدر کے مطابق ملنا ہے، تو کسی کی اگر ہم نقل مار بھی لیں، دیکھ بھی لیں، تو کیسے لے سکتے ہیں وہ سارا کچھ؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا حضرت، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں۔ کال بہت آلریڈی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارا کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی بہت ساری کالز ہیں، ہم پوچھیں گے اپنے پینل والوں سے کہ کون ہے لائن پہ۔ دوسرا کیلیفورنیا یہ ہے سے کہ جی خالدہ ہیں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، میرا نام خالدہ، میرے 2 بیٹے ہیں، محمد اظہر، محمد مدثر۔ جی جی میں انہوں نے صاف کرنا چاہتے ہیں کہ
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਖਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਜੈਸਾ ਬੁਗਦਾ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ इन मेरे बेटे ठीक हो जो। अच्छा बेटे ਇੱਥੇ रहने जी बेटे अमेरिका च ने जी ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ हाँ उन्हें और पाकिस्तान और सारी फैमिली तो ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ जी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ कौन ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ नहीं इधर बेटे नहीं वो शादी करना चाहते हैं पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ जी बेटे शादी किथे करना चाहते हैं कितने भी नहीं करना जाने पर अरे जो मसला कि नहीं गल सुन अच्छा तो मशवरा बच्चे ठीक है जी मशवरा एक देश बिल्कुल मैं बच्चे ठीक है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाइए अच्छा मैं कहा, बच्चे मैं ठीक है मैं इनके ये उन- आखना सी वो जो कि मसला बच्चों है वो ਨੂੰ बयान करें मजबूर ना करना कदी भी अच्छा हाँ ये दिल का मामला है कदी मजबूर ना करना कि उत्थे शादी कर लै अपनी मर्जी ना करना बच्चियां दी मर्जी देखना बाकी हजरत कोलों पूछने हैं कि ओ के आखने जी हजरत अच्छा ठीक है जी बच्चे बिल्कुल ठीक है मेरे सामने कोई गड़बड़ नहीं आ रही नहीं वो पाकिस्तान शादी करने करें यहाँ करें क्या करें देखें जी वो जिस तरह वो बड़े ताबेदार किस्म के आ रहे हैं वालिद की तरफ से बाकी रिश्तेदारों सबका अदब अदाब उनके अंदर आ रहा है लेकिन हाँ जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त लेकिन हजरत प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वो कह रही हैं कि उनके लिए शादी यहाँ करना बेहतर है या पाकिस्तान में करना बेहतर है जो रिश्ते इस वक्त मौजूद हैं जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें वो ठीक है अच्छा जो रिश्ता इस वक्त पाकिस्तान से है वो ठीक है अच्छा ठीक है जी बिस्मिल्लाह करो जी हजरत ने आख्या है कि पाकिस्तान विच उन्होंने वास्ते बेहतर है रिश्ता करना ये वाला मिस जो आया हुआ है अच्छा ठीक है मिसेस कमाल हैं जी न्यूयॉर्क से अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मेरी आपसे से पिछले हफ्ते बात हुई थी जी और मुझे इन्होंने 777 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए बताया था जी जी तो उसके बाद कहा था कि दोबारा कॉल करें तो बताएंगे तो क्या मसला क्या था जी अब जी मसला मैंने बताएं बताया क्या था कि जी वो मेरे हस्बैंड की पिछले साल डेथ हो गई थी अच्छा अच्छा और हाँ अब यहाँ पर सारा उनका बिजनेस मैं संभाल रही हूँ हाँ हाँ उस सिलसिले में मतलब कोई ना कोई परेशानी होती रहती है हाँ ठीक है मुझे याद है जी आपकी कॉल आई थी तो जी अभी जो और आपने बताया क्या था 770 दफ़ा जी आयतुल कुर्सी पढ़नी थी इन्होंने जी तो आपने पढ़ ली वो सारी तादाद पूरी होगी मैंने बिल्कुल कर लिया तादाद पूरी कर ली तो अब क्या हालात इस वक्त हाँ हालात क्या हैं हालात तो वैसे ही हैं अच्छा और मैंने कहा था कि जैसे दिल घबराता है तो कभी मतलब पढ़ने से सुकून मिलता है लेकिन फिर स्ट्रेस हो जाता है अच्छा और ठीक है मुझे याद है हजरत ने कहा था कि फिर उसके बाद वो देखेंगे कि जी क्या दूसरा करना है दूसरा मैं एक और बात पूछना चाह रही थी जी जी कि अगर कोई घर बेचना हो तो उसके लिए कोई वजीफा बता दें और एक बात और पूछना चाह रही थी कि क्या रूहों का हमसे कोई ताल्लुक होता है या नहीं रूहों जिस से तरह जी हर रात मैं ख्वाहिश करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ करके सोचती हूँ कि या अल्लाह मेरे हस्बैंड को मेरे ख्वाब में भेज दे लेकिन मुझे कोई ख्वाब नहीं है अच्छा ठीक है तो उसके लिए मैं बता जी हजरत आपको आवाज़ आई इनकी जी जी अच्छा फरमाइए ये जो आपके जितने मामलात है ना इसके लिए आप आयत करीमा पढ़ें 111 मरतबा पानी पे दम करें और पिएं और ये जो चीज़ कोई सेल करने के बारे में आप सोच रही हैं इसमें थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा हफ्ता 10 दिन फौरी फैसला ना करें अभी इसको पढ़ें ये आपके ख्वाब के लिए भी है मुलाकात के लिए भी है और आपके सारे बाहर के कामों के लिए भी है लेकिन जो चीज़ बेचना चाह रही है उसमें जल्दी ना करें थोड़ा इंतजार कर लें हफ्ता 10 दिन रोक लें इस फैसले को अच्छा ठीक है वैसे मेरा भी मशवरा है मिसेस कमाल के रियल एस्टेट जो है ना इस वक्त उनकी प्राइसें बढ़नी शुरू हो गई हैं जो पिछले 3-4 साल से मंदी का रुझान था वो अब चेंज हो रहा है तो आप जितना इसमें इंतज़ार कर लेंगी अगर आपको ज़रूरत है फौरी तौर पे तो वो अलग बात है लेकिन बाकी भी नाजरीन जो हैं जो अपना घर बेचना चाहते हैं या रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि इसके अगर कुछ देर इंतज़ार कर लें तो कीमतें इंशाल्लाह बढ़नी शुरू हो जाएंगी अगले साल जो स्प्रिंग मौसम बहार है उस वक्त तक हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे तो अगर आप इंतज़ार कर लें तो आपको फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस मिल जाएगी अगले कॉलर देखते हैं जी मैसाचुसेट्स से हैं मलीहा अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम महमूद साहब मैंने पहले भी एक कॉल की थी हजरत ने मुझे पढ़ने के लिए बताया था मेरे मियाँ के 2 केस थे मैंने आपको बताया था एक असाइलम का और एक मैंने स्पॉन्सर उनको किया था जी 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 तो जी जो मेरा केस था वो तो अप्रूव हो गया
تھا. اب 4 ستمبر کو بدھ والے دن ان کی کورٹ میں ہیرنگ ہے. کس کی؟ لائر نے اسائلم کی؟ جی اسائلم کی. اچھا. تو ہمیں لائر نے, ہماری جو لائر تھی اتنے اس کو پیسے وغیرہ, اس نے ہمیں یہی امید دی تھی کہ 4 سے پہلے جج جو ہے آپ نے وائف نے اسپانسر کیا تھا, وہ انٹرویو کلیئر ہو گیا تو جج ختم کر دے گا. اب جمعے والے دن اس کی کال آئی اور اس نے مجھے یہ میسج چھوڑا ہے کہ وہ بالکل نا امید ہو چکی ہے کہ جو اپوزٹ لائر ہے جج اسائلم کا, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی ختم نہیں کر سکتا. میں جج سے اب سامنا ہوگا 4 تاریخ کو. مجھے حضرت نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا 11 اگست کو میں نے شروع کیا تھا 27 دن کا, میرا آج 22واں دن ہے کہ 313 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا تھا. ہماری طرف سے تو لائر نے ہمیں بالکل نا امیدی دکھا دی ہے. میرے ساتھ اور بھی بہت سارے وظیفے میں پڑھ رہی ہوں, لائلہ جتنے بھی ہیں, جتنے لوگ بتا رہے ہیں مشکل وقت کے لیے, آپ دیکھیں یہ سب سے بڑی غلط بات ہوئی ہے کہ آپ باقی وظیفے سارے چھوڑ دیں. جو حضرت نے آپ کو بتایا ہے وہی پڑھیں, باقی سب کچھ پڑھتی رہیں گی تو وہ کام نہیں بنے گا. دوسرا, مجھے جو آپ کی بات سے اندازہ ہوا ہے کہ وہ 4 تاریخ آپ کے 27 دن ختم ہونے سے پہلے آ جائے گی. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں, بالکل نا امید نہ ہوں, بالکل نہ گھبرائیں. جج سے, حضرت سے بات کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا. محمود صاحب, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ کے والد صاحب ہیں ان کو بھی ہارٹ کا مسئلہ ہے, تو وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور 6 سال ہو گئے وہ اپنے کنٹری گئے بھی نہیں, اور بہن کی شادی بھی فروری, اور لائر نے اوپر سے ایک اور نا امیدی کی بات یہ بھی بتا دی ہے کہ آپ ٹریول ڈاکیومنٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو ان کے والد یہاں پہ ہیں؟ نہیں, والد ان کے سری لنکا میں ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر ہیں. تو ہمارا یہ تھا کہ شاید ہمیں 4 تاریخ سے پہلے اسائلم ختم کر دیں گے تو ہم گرین کارڈ ہمارا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, آ جائے گا انشاءاللہ, آپ کا فکر نہ کریں. حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. میں بتاتا ہوں باجی, آپ کی ای میل بھی میں نے پڑھ لی ہے, میں آپ کو خود بھی کال کرتا رہا ہوں لیکن کسی نے اٹینڈ نہیں کی, پھر میں نے دوبارہ آپ کو ای میل کی ہے. آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھے کال کریں, میں آپ کو 2-3 عمل بتا دیتا ہوں, اس سے آپ کی تسلی ہو جائے گی وظیفے کے علاوہ. ایک مرتبہ کے عمل ہیں اس کام کے لیے. پروگرام کے بعد آپ مجھے کال کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, ضرور انشاءاللہ. اگلے کالر دیکھتے ہیں جی. ہلو جی, کون ہے؟ عالیہ بول رہی ہوں. جی عالیہ میشیگن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ فرمائیے. میری بڑی بہن ہے, ان کو 3 سالوں سے مسلسل بخار ہے, 102 103 ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ میڈیسن بھی لے رہی ہیں, اسٹیرائڈ پہ ہیں, تو انہوں نے ہر قسم کے ٹیسٹ کروایا, کوئی ٹیسٹ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ایون کہ ایڈس کا بھی ٹیسٹ کروا چکی ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. تو پھر بھی ان کا بخار اتر نہیں رہا, ویسے ہی شوٹ اپ کر جاتا ہے, کسی وقت اتر جاتا ہے. نام کیا ہے جی بہن کا؟ زیبا شہزادی. زیبا شہزادی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. جی باجی, آپ ایسا کریں کہ پروگرام کے بعد کال کر لیں یا مجھے ای میل کریں. مجھے اس کام کے لیے آپ کو کچھ تعویذ بھجوانے پڑیں گے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. وہ اثرات کا معاملہ ہے, یہاں وظیفہ نہیں چلے گا, تعویذ سے علاج ہوگا. آپ اپنا نام مجھے لکھوا دیں تاکہ میں آپ کو کر دوں, بتا دیں. ان کا نام عالیہ. ٹھیک ہے جی. ہاں ٹھیک ہے, آپ مجھے پروگرام کے بعد کال کر لیں, میں ان کو بھجوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ. نیو جرسی سے اگلے کالر ہیں ہمارے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میں اپنا نام نہیں جان سکتی, لیکن میں نے 4-5 منتھ بیفور آپ کو کال کی تھی اپنی بہن عابدہ بطول کے رشتے کے سلسلے میں کہ نہیں ہو رہا, تو حضرت نے بتایا تھا کہ ان پہ کوئی بندش ہے, تو آپ کیا ہے کسی جی؟ عامل سے علاج کروائیں. کیا جادو تو ہے؟ انہوں نے اب کسی عامل سے علاج کرایا, علاج کمپلیٹ ہو گیا. اب میں حضرت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ان پہ بندش ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا, وہ کیا نام ہے ان کا؟ عابدہ بطول ہے اور پاکستان میں. کیا نام ہے ان کا؟ عابدہ بطول. اور مسئلہ کیا تھا ان کا؟ ان کی شادی کا مسئلہ تھا, رشتے آتے تھے, ہوتا نہیں تھا رشتہ. تو اب ہو گیا؟ نہیں ہوا. وہ ابھی بھی وہ کر رہی تھی, عمل کر رہی تھی, تو حضرت نے بتایا تھا کہ کسی عامل سے رجوع کریں. اچھا, تو عامل نے جو آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے, حضرت سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے انہیں. والدہ کا نام کیا ہے ان کی؟ عابدہ بطول کی والدہ کا نام؟ سیدہ غلام زہرا. سیدہ غلام زہرا. جی ٹھیک ہے جی. سیدہ غلام زہرا. جی, غلام زہرا. زہرا. ہاں جی, ہولڈ رکھے, میں بتاتا ہوں.
ان کی جگہ تبدیل کروائیں. تو جی یہ واکنڈ میں رہتے ہیں ہم لوگ تو اچھے سے رہ رہے ہیں. ان کی جگہ تبدیل کروائیں, پھر ان کو کچھ فرق ظاہری طور پہ پڑے گا. عارضی طور پہ کسی اور رشتہ دار کے گھر تھوڑے دنوں کے لیے ان کو بھیجیں, اچھا اس سے یہ رشتہ تو والا معاملہ بھی حل ہونا جی پڑے گا. جگہ کا بھی مسئلہ ساتھ, جگہ تبدیل ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے کافی. اچھا سر, تو انہوں نے جو عمل وغیرہ کیا ہے تو وہ صحیح ہے, آپ بندش تو نہیں رہی ان پہ؟ بندش ابھی بھی نہیں ہے, مطلب ابھی موجود ہے, جگہ بدلنے سے ٹوٹے گی. باقی علاج اچھا ٹھیک ہے, باقی پڑھا لیا, کافی ہو گیا. جگہ تبدیل کروائیں, جگہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. جیسے ہم بھی یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی پانی کو سپرے کریں گھر میں. اگر جی کسی جی بچی کا رشتہ ہے اور وہ نہیں ہو رہا, بچی کو تو پانی پلا دیا اور گھر میں گھر والوں نے بھی پی لیا, سارے اثرات ختم ہو گئے. اب ہوتا یہ کہ اگر گھر میں سپرے نہ کیا جائے تو جو لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں وہ آتے تو اسی گھر میں نا, اثرات زدہ گھر میں. تو جب وہ اس گھر میں آتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی آ کے دل گھبراتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا, حالانکہ بچی تو ٹھیک ہوتی ہے بالکل. اس لیے جی جی جگہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے ہم جی گھروں میں سپرے کرواتے ہیں. بچی کا گھر تو حضرت جگہ کتنے چینج کتنے کروائیں, دنوں کے لیے انشاءاللہ بجے گا. یہ جگہ تبدیل کریں؟ یہ کوئی ہفتے 10 دن کے لیے صرف. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اچھا بہت شکریہ جی سر. جعفری صاحب ہیں جی نیو جرسی سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں مسز جعفری بول رہی ہوں. جی جی اور مجھے سوال اپنے شوہر کے لیے تھا کہ میرے شوہر کو 2 سالوں سے پروسٹیٹ کی کافی پرابلم ہے. اوہو. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جسمانی پرابلم روحانی پرابلم کی وجہ سے ہے, کیونکہ اس میں کالا جادو اور سحری عملیات کے کافی اثرات ہیں. تو اب چاہے وہ جہاں ہم دعاؤں سے کریں یا دوائیوں سے کریں, وہ ایک بیسکلی یہی بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ ساری زندگی کے لیے جو آف اینڈ آن وہ دوائیاں کھاتی ہی رہنی پڑے گی, کوئی علاج اس کا ہے نہیں ہے سچ, کیونکہ وہ بیکٹیریا بار بار آ جاتا ہے. اب دوسری اچھا طرف سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اثرات کا بھی اثر ہے. تو سوال بس میرا یہی تھا کہ اگر سبحان اللہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ کہاں جی تک ضرور. اثرات کا اثر ہے. کیا نام اور کیا ہے یہ پورا کہ اگر جعفری صاحب کا؟ جی جعفری صاحب کا نام سید تنویر احمد جعفری. سید تنویر احمد جعفری. جی تو ان کو کوئی کینسر وغیرہ تو نہیں ڈیٹیکٹ ہوا؟ سوری واپس ذرا سا نہیں, ریپیٹ کریے گا پلیز. پروسٹیٹ کا کینسر ہے یا گروتھ ہے, کیا ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, پروسٹیٹ کا کوئی کینسر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ہیں. پروسٹیٹائٹس انہوں نے کہا ہے کہ پروسٹیٹائٹس ہے, تو یہ بار بار جو ہے آتی جاتی رہتی, اس کے ٹھیک ہے بیکٹیریل اٹیکس ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی, تو پوچھتے ہیں وہ حضرت سے. جی جی حضرت. یہ اثرات وغیرہ یا خاص طور پہ اس کو ہم کو شدید قسم کا کہیں گے, ایسی بات تو نہیں آ رہی. اگر تو جی ان کے اوپر اثرات ہیں تو انتہائی معمولی سے ہیں. اچھا مطلب ان کو اگر آپ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور دوائی کا بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے تو, اچھا باقی تو اللہ اچھا تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, انشاءاللہ. لیکن جی اشارہ یہ کہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورہ اچھا, فاتحہ 41 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. کتنے دن تو پڑھنا یہ ہے حضرت؟ کتنے دن تک ہے؟ اس کو مستقل جاری رکھیں, یہ آپ کو اچھا خود پتا چل جائے گا کب اس کو ختم کرنا ہے, اس کے دن کوئی نہیں ہے. اچھا اچھا کیونکہ ایکچولی ان کی پرابلم بھی ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ فلیئر اپ ہوتی ہے اور پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر وہ کچھ عرصے کے لیے ہوں. اسٹینڈ بائی, مطلب صحیح ہوتا ہے, اصل صحیح میں آرام سے ہاں, چلتا ہے. وہ جو اس کے دن ہے نا دوبارہ آنے جانے کے, وہ تو آپ لوگوں کو ہی پتا ہے نا, تو وہ یہ پڑھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں اب اور نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا تو اچھا صحیح ہے. تو یہ ہو گئی جسمانی طور پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اثرات کے اثرات الوقت جو ہے وہ کم نظر آ جاتے بالکل معمولی سے, یہ ہاں یہ سورہ فاتحہ آپ ان کو یہ پانی پلائیں گی تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہیں. انشاءاللہ صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, بہت ٹھیک, بہت شکریہ. شکریہ جی آپ کا. کینٹکی سے ہیں صالحہ, السلام علیکم. جی میرا نام تانیہ ہے, کینٹکی سے. ثانیہ. جی تانیہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے پیروں میں بڑی بے چینی رہتی ہے, ہاتھوں میں اور ایڑیوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, رات بھر سو نہیں سکتی, پورے بستر میں مطلب بہت بے چینی سی رہتی ہے, سر میں بھی درد اور عجیب سے وہم آتے ہیں بہت برے برے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کچھ کروایا ہے, ایسے بہت برے برے سے. تعلیم میں بھی آگے نہیں ہو سکتی, تعلیم بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی فیلڈ میں جاؤں, کیا کروں, تو آپ برائے مجھے بتا دیں کہ تو اگر آپ اس وقت پڑھ رہی ہیں؟ جی آپ کالج میں ہیں؟ جی میں یونیورسٹی میں جاتی ہوں, اور ابھی میں نے اپنا میجر چینج کیا ہے اکاؤنٹنگ میں, اور میں چاہ رہی ہوں کہ بیچلر کر لوں. تو مجھے دن میں بہت بعض دفعہ یہ خیالات آتے ہیں کہ شاید میں آگے نہ پڑھ سکوں یا کوئی ٹھیک ہے رکاوٹ ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی, پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے 71 ٹائمز 8 دن, پانی پہ دم کرنا ہے, اس کو پئیں اور خاص طور پہ اپنے کمرے میں ضرور سپرے کریں. اگر پورے گھر میں کر لیں گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. اثرات کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی.
हाँ, तो ये आप कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जी के कलाम अच्छा। में बहुत ताकत है। नाज़रीन, तो आप वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं marymax.com। जैसे कि हर प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करता हूँ कि जिन वालदैन को परेशानी है बच्चे बच्चियों की शादी के लिए, उनके रिश्तों के लिए, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है marymax.com। ये पाकिस्तानियों ने बनाया है, पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखा है वो ये है कि आपकी प्राइवेसी या आपकी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में न जाए। इंतहाई महफूज वेबसाइट है, आप बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक इनकी रजिस्ट्रेशन फ्री है, हज़ारहा लोग इसमें रजिस्टर करवा चुके हैं, तो जिसकी वजह से जो पूल है रिश्तों का वो बहुत बड़ा हो गया है। और हम दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आपको अपने बेटे बेटी के लिए बहुत ही मुनासिब और अच्छा रिश्ता मिले और उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी बिल्कुल पुरमसरत और खुशगवार गुजरे। तो आप ज़रूर जाइएगा marymax.com पे, एक दफ़ा जाके वहाँ ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी बार स्पॉन्सर हैं काबुल कंधार रेस्टोरेंट। अफ़गानी खानों के लिए ये इससे अच्छा मुझे रेस्टोरेंट और कोई नहीं नज़र आया, ना ही मैं बहुत दफ़ा गया हूँ मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पे, लेकिन सबसे अच्छा ऑथेंटिक अफ़गानी खाना जो है वो काबुल कंधार रेस्टोरेंट पे ही मिलता है। बहुत ही मज़े के इनके अफ़गानी कबाब, अफ़गानी टिक्के और अफ़गानी पुलाव और शवरमा। न्यू जर्सी में रहने वाले लोग उसके गिरदोरमाह में, बल्कि न्यूयॉर्क से भी आप जा सकते हैं। ओक ट्री रोड पर इज़लन पे इनका ये है काबुल कंधार रेस्टोरेंट। और अगर और भी देसी खानों के लिए भी इनके दो और रेस्टोरेंट है उसके साथ ही, शालीमार। और इसके अलावा इनका ग्रोसरी स्टोर है बहुत ही अच्छा, और हलाल गोश्त का स्टोर भी है शालीमार के नाम से। सेठ लतीफ़ साहब हैं जो कि बहुत मेहनत से और अपनी ज़ेर निगरानी सारे खाने वगैरह तैयार करवाते हैं। तो एक दफ़ा जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार जाएंगे काबुल कंधार रेस्टोरेंट। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। दोबारा खुश आमदीद, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें। हज़रत से रब्ता करने का बेहतरीन तरीका abbascaworld.com जो इनका वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, उस पर ज़रूर जाएँ। वहाँ आपको तमाम इनके बारे में मालूमात मिल जाएंगी कि किस तरह कॉल करना है, ईमेल का क्या एड्रेस है और बाकी जो मुफीद मालूमात हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है हज़रत से रब्ता करने का। आप अपने तमाम मसाइल जो हैं वो उसके ऊपर उनका ज़िक्र भी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ़ हज़रत के पास ही उन्हीं को मालूम होगा, कहीं और आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो नाम याद रखिएगा abbascaworld.com। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। डेलस से समीना है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा मसला ये था कि मैं 2 वीक पहले जो है वो मैंने कॉल किया था। हजरत ने मुझे वजीफा दिया था कि कुल पढ़ना है 11 डेज, वो मैंने पढ़ ली थी। अब मुझे पूछना है कि मैं क्या दूसरा वजीफा स्टार्ट करूं या क्या आपका प्रॉब्लम क्या था जी? मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे हस्बैंड कभी भी जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुक्र अल्लाह का हलाल है, और वो जब भी करते हैं तो वो कामयाबी नहीं होती है। प्लस मैंने कहा था कि मेरी नई जॉब थी और हमेशा मेरे ले ऑफ हो जाता था, तो अब जो नई जॉब है उसमें स्ट्रेंथ के लिए मैंने कहा था। तो क्या बताया था आपको हज़रत ने पढ़ने के लिए? मुझे 11 दिन जो है कुल अल्लाह पढ़ने के लिए कहा था। कुल हो वल्लाह जी, सूरह इखलास। सूरह इखलास। अच्छा, अब क्या हालात हैं? जॉब भी मेरी चल रही है और मेरे हस्बैंड का कहते हैं थोड़ा बहुत असर हुआ है। अच्छा, चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, पूछते हैं हज़रत से। जी हज़रत। ये आपने सूर्य इखलास कितनी मरतबा पढ़ी है? 71 टाइम। ठीक है, मैं आपको एक सुबह शाम पढ़ने के लिए मुख्तसर वजीफा बता देता हूँ आपके सारे कामों के लिए। उसमें दुरूद शरीफ 1 मरतबा,
सूर्य फातिहा 1 मरतबा, सूर्य इखलास 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा, सूर्य फलक 1 मरतबा, सूर्य नास 1 मरतबा, दुरूद शरीफ 1 मरतबा। इस वजीफे को सुबह शाम 1-1 मरतबा पढ़ लिया करें आप, ओके, और इसको और मुस्तकिल कितने जारी तक रखें। पढ़ूं? मुस्तकिल पढ़ें, म- पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। वैसे ओके, हाँ शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, और नाज़रीन आपसे एक याद दहानी भी आपको कि कागज़ पेंसिल आप साथ रख लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा हज़रत जो वजीफ़ा बताते हैं ज़रा लंबा होता है, तो आप लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे भी प्रोग्राम रिपीट होता है, उसमें भी आप दोबारा देख सकते हैं। शाइना है न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम अवान साहब, मैं वालेकुम शाइना बात कर रही हूँ न्यूयॉर्क वालेकुम से। अस्सलाम, आपका फरमाइए। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और उस्मान साहब भी बहुत अच्छे सवालों के जवाब देते हैं और हम सब इससे बहुत मुस्तफीद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा आपका। मसला औलाद के सिलसिले में है। जी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कंसीव नहीं किया है। ओहो, तो आप ये बताइए कि कोई बंदिश वगैरह तो नहीं है, और आप मैं ना IVF करवाना चाह रही हूँ कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा? तो आपने पहले कोई डॉक्टरों को दिखाया है? हाँ, डॉक्टरों को वगैरह को सब दिखाया है, सब तो चीजें क्या ठीक कहते हैं ठाक है, डॉक्टर्स के? लेकिन मसला मैंने कभी आपका है कंसीव या नहीं किया। मियाँ की तरफ से, कहाँ से? जी, नहीं, डॉक्टर क्या बताते हैं? आई एम सॉरी। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि मियाँ का मसला है या? डॉक्टर ने तो पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि IVF के जरिए से होगा मसला ये ना, तो मैं जरा हिचकिचा रही हूँ ये करवाते हुए ना। तो आपने तो कभी कोशिश की है आर्टिफिशियल वो जो होता है जी जी, अच्छा उसके लिए? IVF हाँ जी, इंट्रो क्या कहते हैं उसके, वो फर्टिलाइजिंग समथिंग। जी, इंट्रो होता है, मुझे भी भूल रहा है इस वक्त। जी फर्टिलाइजेशन जी जी जी। समथिंग लाइक दैट। पूछते हैं जी हजरत का क्या मशवरा है, हजरत से जी पूछते हैं। ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम और उनकी वालदा का नाम लिखवाएं। जी, मेरे हस्बैंड का नाम अयाज खान है, उनकी वालदा का नाम शमीम इकबाल है। 13 दिन का वजीफा है आपके हस्बैंड के लिए। 13 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, पानी जी पे जी, दम करके अपने हस्बैंड को पिलाएं, फिर मुझे कॉल करें, फिर मैं आपको बताऊंगा आप ठीक लग रही हैं मुझे। अच्छा, सही है, ठीक है, उधर थोड़ा थैंक यू। सा कोई मसला आ बंदिश रहा है। वगैरह तो नहीं है हजरत साहब? और जी, तो कभी कोई बंदिश वगैरह तो नहीं किसने लगाई? ये भी नहीं पता चल रहा मुझे, लेकिन जो भी गड़बड़ है वो आपके हस्बैंड की तरफ है। उनको जरा ये पानी पिलाएं 13 दिन के बाद, फिर मुझे भी जरा क्लियर पता चल जाएगा। वो पानी पी लेंगे ना 13 दिन। जी जी, 13 दिन आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जी, अव्वल आखिर अच्छा, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और कितनी दफ़ा पढ़नी हजरत? 13 मरतबा। 13 मरतबा। उसके जी बाद जब आप कॉल करेंगी ना तो हजरत के लिए पोजीशन ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, फिर वो आपको बताएंगे कि जी असल मसला क्या है और उसके बाद क्या लाहे अमल हमने इख्तियार करना है। तो जी आप जी, प्लीज़ बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू बहुत जी। बहुत शुक्रिया भी आप। हाँ जी। न्यूयॉर्क एक से इसमें सुल्ताना है, गुजारिश अस्सलाम। भी ये करनी थी, जी एक गुजारिश करनी थी। जिस तरह ये 13 दिन के लिए इनको बताया गया है, तो लोग अगले प्रोग्राम का इंतजार करते हैं 13 दिन के बाद। तो अच्छा। जैसे ही अमल हम्म, खत्म हो जाए फौरी तौर पे राब्ता किया करें, ताकि इस सारे इलाज के दौरान ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नागा न कई दफ़ा वो हो। चूँकि कॉल्स का रश बहुत होता है और आपकी कॉल भी नहीं मिलती, तो जैसे ही आपके वो दिन पूरे हो जाएँ जो हज़रत ने बताए हैं, तो आप हज़रत से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनका वेबसाइट भी है, वहाँ पे सारे टेलीफोन नंबर भी हैं, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको कॉल ना मिले। सुल्ताना है न्यूयॉर्क यहाँ से। पे जो लोग हमें हमें जो लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अगर मैं नहीं भी होता तो कॉल करके अपना नाम लिखवा के अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं, हम कॉल बैक करते हैं उनको आके। ठीक है जी। कोई कॉल मिस नहीं कर रहे हम यहाँ पे, इसलिए ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर फौरी राब्ता किया करें। ठीक है जी, बहुत अच्छा। सुल्ताना है जी न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल उनकी हमारी हेलो। बात। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी दो बातें मैंने पूछी थी। जी एक तो ये कि मेरा बेटा है 23 साल का, तो जी। वो थोड़ा सा गलत काम में पड़ा हुआ है और उसकी जो गर्लफ्रेंड भी है वो तकरीबन रोज ही आ जाती है ओहो, और मैं इस वजह से काफी परेशान हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मेरे फादर की कोई जमीन थी, उनको किले में मिली थी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ, पाकिस्तान तो में? मुझे उसके कुछ पढ़ने के लिए बता दें ताकि वो हमारे इतिहास में हो जाए वो केस। पाकिस्तान में ज़मीन? जी ज़मीन पाकिस्तान में है। जी जी। और बेटे की जो गर्लफ्रेंड है कौन है, अमेरिकन है या पाकिस्तानी कोई? एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही आपकी?
بیٹے کی جو گرل فرینڈ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں کی ہے یا پاکستانی ہے؟ یہاں پہ امریکہ میں. امریکن ہے وہ لڑکی؟ جی جی. اچھا کوشش کریں اس کی کوئی شادی کا بندوبست کریں. آپ حضرت سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مشورہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. دونوں کام. میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کی شادی کا کچھ بندوبست کریں. ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے, ابھی تو مطلب اس نے پڑھا بھی نہیں ہے پورا, تو ابھی تو جب وہ چلے پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے حضرت سے. شادی ضروری ہو سکتی ہے نا. جی جی حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. بیٹے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 110 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, پانی پہ دم کریں اور بچے کو پلائیں. 11 دن کا عمل ہے, 11 دن کے بعد رابطہ کریں. اور وہ جو زمین والا معاملہ ہے اس کے لیے سورہ مزمل پڑھیں 11 مرتبہ 11 دن, اور اس کے بعد رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون؟ میں ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے اپنا خواب بتانا تھا. میں نے آج ہی دیکھا, فجر کے بعد میں نے دیکھا خواب میں کہ میں کہیں اکثر جتنے بھی میں نے آج خواب دیکھے ہیں میں سب میں اندھیرا ہی دیکھتی ہوں. اور دوسری جو آج میں نے خواب دیکھا ہے وہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بچی ہے. وہ میری اپنی بچی نہیں ہے لیکن کوئی چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی. میں اس کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں اور مجھے کہیں راستہ نہیں مل رہا. آگے بہت عجیب سے راستے ہیں جن سے میں گزرتی ہوئی میں جا تو رہی ہوں, لیکن راستے میں دیکھتی ہوں کہ اندھیرا بھی ہے لیکن مجھے پیچھے سے کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے نا, مطلب کاٹا ہے مجھے. تو میں نے ہاتھ لگا کے فیل کیا تو وہ کتا تھا. تو اس نے نا میرا گوشت پیچھے سے میرا منہ میں لیا ہوا ہے اور کسی طرح سے چھوڑ نہیں رہا, اور کوئی میری ہیلپ بھی نہیں کر رہا کہ کوئی مجھے اس سے بچا سکے نا. خیر وہ کتا بھی ایسا ہے کہ زیادہ مجھے تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے. پھر تھوڑی سی میں آگے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری جو گاڑی ہے کیمری ہے وائٹ کلر کی, وہ میں نے کھڑی کی ہے اور میں کھڑی کر کے تو میں آگے جاتی ہوں تو مجھے کہیں سے وہ راستہ ہی نہیں ملتا آگے جانے کا. تو ایک دم اچانک سے میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں آگے. پھر میں ان کے ساتھ جب میں آگے جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہ کیمری جو میں ڈھونڈ رہی ہوں واپسی کے لیے, تو وہ کیمری لوگوں نے پتہ نہیں کیسے وہ توڑ پھوڑ دی. وہ گاڑی بالکل میری ٹوٹ گئی اور میرے ہسبینڈ رو رہے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی مشکلوں سے یہ فکس کروائی تھی اور یہ توڑ بھی دی ان لوگوں نے. اور لوگ پتہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں, گھروں کو توڑ رہے ہیں. اور وہاں پر میرا بھی ہے سارا کچھ جو بالکل ختم ہو گیا. اور میں پھر واپسی کا راستہ میں ٹھیک ہے تلاش جی, کرتی ذرا ہوں تو لیکن عجیب سمجھ سی گئے آپ کی گڑبڑ دیکھی ہے میں نے خواب آپ کی خواب سمجھ گئے. آپ اپنا نام بتائیں گی محترمہ؟ میرا نام نیلم ہے, میں ٹیکساس سے بات کر رہی اور ہوں. والدہ کا نام؟ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں, ان کا نام فخر النساء ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, حضرت سے پوچھتے ہیں کہ وہ روحانی طور پہ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ. جی باجی, مجھے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین ہی ہے جو ایک روشنی کی چیز ہے, اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. آپ کو کسی لوگوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے, اپنے کسی بھی کاموں میں لوگوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اور آپ کی یہ جو کیفیت ہے, یہ جو خواب ہے, یہ اگر ہم اس کو عملیاتی لائن سے دیکھیں تو تب بھی بالکل واضح ہے. یہ اثرات کا معاملہ ہے. اس کے لیے آپ کو نا مسنون اعمال کی طرف بڑا دھیان کرنا چاہیے. اس میں سے ایک تو میں آپ کو 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت کلمہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی اس کو آخرت کی طرف مستعد رکھتی ہے. دنیا کے کاموں کو دیکھتے ہوئے یا کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. ایک تو رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں باقاعدگی کے ساتھ, اور صبح اٹھیں تو مسنون دعا پڑھیں صبح اٹھنے کی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اور مسنون طریقے سے اٹھیں کہ پہلے بستر پہ اٹھ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ایسے سر کے اوپر پھیرنے, اور چارپائی سے یا اپنے بیڈ سے دائیں طرف سے اترنا, دعا پڑھ کے بالکل مسنون طریقے سے آپ اٹھیں. اور دوسرا, رات کو سونے سے, اب ایک عملیاتی بات بھی کر دوں ساتھ, کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں آپ. ٹھیک ہے جی,
बहुत बहुत शुक्रिया। सबा है न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हो गया है कुछ तो 8 महीने पहले। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, वो पाकिस्तान से है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, लेकिन उसकी इंटरव्यू हो गई है, लेकिन उसका वीज़ा नहीं लग रहा है। और जब मैं किसी को कांटेक्ट करती हूँ एम्बेसी में, तो वो कहते हैं कि नॉर्मल प्रोसेसिंग है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं सुना। बहुत लोगों जो उसके साथ इंटरव्यू हुआ सबको मिला, लेकिन उसको नहीं मिला। और ऐसे ही हमारे घर में बहुत ही सारे काम बंद हो चुके हैं जो नहीं हो रहा है। तो मुझे पूछना था कि ये कुछ असर तो नहीं है दूसरा, ये कुछ वसीवा या कोई अमल कितना बता सकते कितना हैं अरसा इसके हुआ लिए? है अप्लाई किए हुए? जी, कितना अरसा हो गया आपको अप्लाई किए हुए? और उसको अप्लाई हो गए 1.5 ईयर, कुछ 2 साल पूरे होंगे, और 2 महीने। इंटरव्यू के बाद कितना अरसा गुजर गया? जी, इंटरव्यू कब हुआ था? इंटरव्यू जनवरी में हुआ था इस साल, 8 महीने पहले। अच्छा, मेरा वैसे अपना तजुर्बा है, हज़रत से पूछेंगे दुआ के लिए इंशाल्लाह, कि कई दफ़ा वो जो है ना वो बैकग्राउंड चेक में या क्लियरेंस में देर लग हाँ हाँ जाती हाँ, है। बिल्कुल। यही मसला होता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ उनका होता है। तो लेकिन हज़रत से पूछते हैं कि इसको एक्सपेडाइट करने के लिए या तेज़ करने के लिए अमल को क्या फ़रमाते हैं? जी हज़रत। इस काम के लिए एक तो है जी इनके अपने घर के मामला जो अमेरिका में है, और एक मामला वो हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जैसे इनके शौहर हो गया या जिस जगह पे वो रह रहे हैं। तो इस वक्त जो अहम काम है वो शौहर को जो फोकस करना जरूरी है, ये सारा काम ज्यादा अहम है। अगर इनके घर में कोई असरात वगैरह या ऐसा मामला है तो उसको बाद में वजीफा करें, पहले इस चीज का करें कि इनके शौहर का काम हो जाए। जी। तो उसके लिए आयत करीमा है 111 मरतबा, वो ठीक। पढ़ें। इस सारे काम के लिए शौहर का तसव्वुर करके पढ़ें, काम का तसव्वुर ना रखें, शौहर का तसव्वुर रखें उसमें। ठीक है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ? 11 मरतबा। जी। ठीक है जी, सुनिए आपने। हाँ, अगली कॉलर हैं जी, वो अपना नाम भी नहीं बता रही, जगह भी नहीं बता रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे इसलिए अभी नाम नहीं बताना चाह रहे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें जॉब करना चाह रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उसकी, लेकिन मुझे जो है ना बहुत सीवियर एंजाइटी है, ओसीडी है। ओसीडी की वजह से मुझे एक तो बहुत शदीद गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन, और दूसरा ये कि ख्यालात इतनी इतनी जलगार रहती है, जिसकी वजह से जो है ना मेरा जहन फोकस एक जगह नहीं हो पाता, और मेरी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अब इस हालात में मैं जॉब कैसे करूँ? मुझे लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती, कि मेरा जहन मेरा रहता ही नहीं, जी, मुझे ख्यालात, फिर वो जो सोचती हूँ तो वही ठीक है ख्यालात ख्वाब बाजी, की सुन शक्ल लें। में शुरू हो जाते हैं। ये सुन आपके ले। लिए जॉब करना, आपके लिए जॉब करना बेहतर भी नहीं आ रहा। सबसे पहले आपकी तबीयत है, मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हाँ हाँ, 101 मरतबा रोजाना पढ़ें, पानी पे दम करें और पिएं 7 दिन। अच्छा 7 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं देखूंगा। अभी जॉब की तरफ ध्यान ना दें। जी, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट होती है, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं जॉब कर पाऊंगी इससे यही पहले। हज़रत यही हाँ जी, फरमा रहे हैं करनी भी जी नहीं। कि पहले आपकी तबीयत के लिए वो उन्होंने फरमाया है, क्योंकि इस तबीयत के साथ आप जॉब करेंगी भी तो वहाँ कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, गुस्सा आपको आता है। तो पहले अपनी तबीयत को ठीक करें, उसके लिए जो हज़रत ने आपको बताया है वो अमल करें। तो इंशाल्लाह जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह जॉब के लिए तो आप जो है इसके बाद कॉल कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बताया जाएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे सबसे पुराने स्पॉन्सर honeyderm.com। बालों के लिए, अगर आपके बाल गिर रहे हैं या नए बाल उगाना चाहते हैं, तो उनके लिए इनका शैम्पू और इनका वो लोशन है वो इस्तेमाल करें। बहुत ही मुजर्रब है, मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं। मैंने जिसको भी बताया, जितने दोस्तों ने भी उसको इस्तेमाल किया है, सबके बाल गिरने बंद हो गए हैं और नए बाल उगने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा स्किन की जितनी भी बीमारियाँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन बड़ी ज़रूरी होती है हमारी अपीयरेंस के लिए, कि अच्छी शक्ल नज़र आए। हर बंदा कोशिश करता है, लोग हज़ारों डॉलर्स भी खर्च कर देते हैं स्किन के लिए। तो इनकी डर्माटोनिक क्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी, जितने दाने हैं, महासे हैं, कील हैं, छाइयाँ हैं, और जो भी कई दफ़ा वो जो जब जवानी शुरू होती है तो दाने निकलते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे भी आप रोज़ाना उसको इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन पे एक ग्लो आ जाएगी और बड़ी रेडिएंट नज़र आएगी आपकी स्किन। और तीसरा इनका जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो भी मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, वो है डायबिटिक सपोर्ट फार्मूला है इनका। हमारे डायबिटिक जितने पेशेंट्स हैं हमारे नाजरीन, वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शुगर भी कम हो जाएगी, ब्लड शुगर, और उसके अलावा बहुत एनर्जी और तवानाई महसूस करेंगे। तो honeyderm.com पे आप जाइए और इनकी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तफसील तमाम मौजूद है।
आप यूज़ कीजिएगा और उसके बाद मुझे भी दुआ दीजिएगा और हनीडन वालों को भी दुआ दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आप न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें, आज USA टीवी पर। दो इत्तलान आपसे दो बातें अर्ज़ करना थी। एक तो ये है कि आज USA पे एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, डॉक्टर जाहिद एंड ज़ारा शो, इतवार को दोपहर 2 बजे इसी चैनल पे जिस पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है। दो डॉक्टर्स हैं जो कि सोशल इश्यूज़ पर भी और मेडिकल इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। इसके 2 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं, लाइव आता है। आप अपनी कॉल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने मसलों का, अपने मसाइल का, जो डॉक्टरी हैं या सोशल हैं, आप उनसे ज़िक्र भी कर सकते हैं। बड़े अच्छे मशवरे वो आपको देंगे। बहुत काबिल और तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं और वैसे भी शो बड़ा मज़ेदार है, आप एंजॉय करेंगे। इसके अलावा abaskaworld.com पे आप जब भी जाएं और या वहाँ का फॉर्म फिल करें तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उस पर लिख दें, ताकि हज़रत चूँकि ख़ुद ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेते हैं हर एक मामले में, तो कई दफ़ा वो चाहते हैं कि आपसे ख़ुद बात भी करें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपसे पूछना चाहते हैं। तो अपना मोबाइल लिखना मत भूलिएगा। अगले कॉलर देखते हैं, न्यूयॉर्क से हैं जी हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हामिद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ, कनाडा मॉन्ट्रियल से। अच्छा ठीक है, फरमाइए। जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए आप। जी मेरा मसला है, मैं 19 साल से कनाडा में मुकीम हूँ। जी हेलो जी जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ज़रा प्लीज़। जी आ रही है आपको मेरी बात? जी मैं 19 साल से कनाडा में मुकीम हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पे इमिग्रेशन की। जी जी। तो मेरा मसला आज तक हेलो जी मेरा मसला आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें बहुत प्लीज़। कुछ पढ़ा है पाकिस्तान से पूछ के, काफ़ी लोगों से, लेकिन ये समझ नहीं आ रही जी। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो मेरी आवाज़ आएगी आपको। जी जी, टीवी की आवाज़ नहीं चल रही। अच्छा जी जी, आपको आवाज़ आई है ना मेरी? अभी जी अभी आ रही है। हाँ जी, फरमाइए, ज़रा जल्दी बताएं। जी मैं 19 साल से यहाँ कनाडा में जो मुकीम मामलात है ना, तो मैंने ये आप सुन लें, हजरत ने आपकी बात सुनी। वजीफा लिख लें। हाँ जी, वजीफा लिख लीजिए आप। आपने सूरे ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा 21 मरतबा पढ़नी है रोजाना। रोजाना पढ़ने के बाद आसमान की तरफ ऊपर मुंह करके फूंक मार देनी है और इसको 21 दिन पढ़ें। 21 दिन करने के बाद मेरे से राब्ता करें। आपके जितने भी काम है आपसे दूर दूर, घर से बाहर के सब काम आपके रुके हुए हैं मेरे सामने। तो आप ये पढ़ें, तो 21 दिनों के बाद फिर देखते हैं क्या हालात है। ठीक है जी। फजल हैं जी न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। फजल इलाही बात कर रहा हूँ इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, फरमाइए। हजूर कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है जी। अच्छा हजूर, गुजारिश ये है, हमारे एक दोस्त हैं सदाकत अली, न्यूयॉर्क में होते हैं, ब्रुकलिन में। जी जी। और उनकी बीवी पे ना जिन्न आ गया, गाड़ियां रिवर्स चल चुकी हैं और जनाब वो बताती हैं कि 300 साल पुराना जो औरत है वो मैंने जाना नहीं है। 3 साल हो गए हैं, बड़ी कश्मकश में है। हमारे दोस्त हैं सदाकत अली और बहुत परेशान है, उनके लिए कोई वजीफा चाहिए बस। उनका क्या नाम है जी मोहतरमा का? मोहतरमा के नाम का नहीं मुझे पता, उनके हस्बैंड का नाम का पता, मुझे सदाकत अली नाम है। तो ये किसने बताया कि जिन है उसके ऊपर? वो वहाँ पर काफी लोगों से मिले हैं, पेंसिल्वेनिया गए हैं, काफी जगह पे उन्होंने तकोदो की है। एक बिल्डिंग आई है पेंसिल्वेनिया में, उन्होंने बताया कि मैं इसमें रहती थी 300 साल से। अच्छा। उसके बाद वो गाड़ी में लेके जा रहे थे किसी आदमी के पास दिखाने के लिए, तो गाड़ी रिवर्स होना शुरू हो गई। अच्छा हाँ जी, ये मैंने तो नहीं मिला, लेकिन मैं उसकी हालत देखता हूँ, बंदा बहुत नेक है, 5 वक्त का नमाजी है। ठीक है, अब बड़ी ट्रबल है। अब आप हजरत की बात जरा सुन लें। जी हजरत। सदाकत साहब को कहें कि मुझे कॉल करें या अपना सदाकत साहब का मोबाइल नंबर मुझे दें
ये इस तरह के जो जिन होते हैं इनको सीधा करना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। उन्हें को मैं ऐसा जरा कॉल करें, मैं बाकी खुद ठीक कर लूंगा इसको। ठीक है जी। टेक्सास से अनीला हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अनीला बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे भाई हैं, उनका नाम है वकास अहमद। जी जी। तो वो तकरीबन 3 साल बल्कि चौथा साल उनको ऑलमोस्ट होने वाला, वो लंदन गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ सेटल नहीं हो रहे, बहुत परेशानियाँ देख रहे हैं ना। फर्दर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें फिलहाल कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, तो उनके लिए पता करना था मैंने। तो प्लस मेरे दूसरे भाई हैं। हेलो जी जी जी। दूसरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका नाम शहजाद है, तौकीर अहमद नाम है उनका। तो उनकी भी तकरीबन ये कि 4 साल होने वाले हैं, तो औलाद नहीं हो रही ना। अच्छा, एक का नाम है वकास अहमद जी, वकास जो लंदन अहमद, गए और हुए दूसरे हैं हैं, शहजाद परेशानी अहमद। देख रहे हैं। हाँ जी, दूसरे शहजाद अहमद हैं। दूसरे हैं तौकीर अहमद। तौकीर लेकिन उनको निकनेम लाइक शहजाद बुलाते हैं हम। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक और चीज प्लीज, अब्बू के बारे में पता करना था। अब्बू आजकल बहुत परेशानी से मतलब गुजर रहे हैं, बहुत वीक होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। उनका नाम? माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी लाइफ गुजरी है, उनका नाम? लेकिन अभी वो आजकल बहुत बीमारी के फेस से गुजर रहे हैं। उनका नाम बता देंगी प्लीज? सैयद अहमद, अब्बू का नाम है सैयद अहमद। सैयद अहमद जी। हजरत अच्छा जी बाजी, मेरे सामने जो सूरत हाल आ रही है वो बड़ी अजीब आ रही है। आपके वालिद या आपके घर वाले और आपके भाई, इतने वज़ाइफ हैं इनके ऊपर कि अजीब सूरत हाल बनी हुई है। अब इतने वज़ाइफ, ये बाजी बात ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इनके लिए, आपके भाइयों के लिए। हेलो जी जी। वो हजरत फरमा रहे हैं कि बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो इनके लिए किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़, आपने पता नहीं किस किस से कहा हुआ है इनके लिए पढ़ने से, तो वो उनको बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही है। क्या ऐसे है वाकई? नहीं जी, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, आप यकीन करें, कोई ऐसी बात नहीं, किसी से कहा नहीं है। खुद से की जरूर है पढ़ाई, वो भी वज़ाइफ की बुक से देखकर, क्योंकि वकास जो छोटा वो इतनी मेरी परेशानी बात से गुजरा। सुने, आपके घर की बात कर रहा हूँ, आपके घरों के अंदर से उनके लिए पढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं। यानी इस तरह की सूरत हाल है कि एक बंदा है, उसके लिए उसकी माँ भी पढ़ रही है, उसकी बहन भी पढ़ रही है, अगर उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी भी पढ़ रही है, उसकी खाला भी पढ़ रही है, उसकी फूफो भी पढ़ रही है, इस तरह का मामला आ रहा है। बीमारी रहती है, अम्मी भी बीमार रहती हैं, बहुत अरसे से बीमार रहती नहीं, हैं, आपने तो इतनी कंटिन्यू। आपने फरमाया ना कि आप दुआएं किताबों से पढ़ती हैं। बात नहीं, मैंने सच्ची, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं की अपने भाइयों के लिए। अम्मी ने भी किया, वो भी लाइक सूरह मोहम्मद पढ़ ली है, इस तरीके से। वो भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इस बात को भी शायद काफी अर्सा बहरहाल हजरत के सामने जो ही लोगों, मैं जो मेरे सामने बात आ रही वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है उसको मानना ना मानना आपके इख्तियार में है। आपके भाइयों के इर्द गिर्द अपने ही लोगों की अच्छी नीयत से किए हुए वज़ाइफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, पढ़ाइयाँ मुझे आ रही नजर। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जी। और उन्हीं पढ़ाइयों का दबाव पड़ गया बहुत ज्यादा। अच्छा। जैसे बहुत ज्यादा दबाव है अपनी ही पढ़ाइयों का। इसका बेहतरीन हल ये है कि जो भी उनके लिए पढ़ रहा है उनको कहें ना पढ़े, इतनी जरूरत नहीं पढ़ने की, सिर्फ एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ लें सारे कामों के लिए, दोनों भाइयों के लिए, अपने वालिद के लिए, सारे कामों की नियत करके, सारे लोगों की नियत करके एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ना काफी है। ठीक है जी। यहाँ पे पढ़ाई कम करनी है और नहीं करनी। ठीक है। मिसेस कमाल है न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात कर रही हूँ अपनी बड़ी बहन के लिए, पाकिस्तान में होती है, उनकी शादी के लिए। उनका नाम है हुमैरा भट्ट और उनकी शादी नहीं हो रही। अच्छा, आपकी बड़ी बहन है? मेरी बड़ी बहन है पाकिस्तान में। हुमैरा मेरी फौत हो चुकी हैं, रिश्ते या तो आते नहीं हैं, आए तो बात नहीं बनती, और वालिद बहुत परेशान है, और वालदा के बाद तो वालिद भी बहुत कमजोर हो गए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो जाहिर है जी, परेशानी तो होती है। हुमैरा नाम बताया आपने? जी हुमैरा नाम है। ठीक है जी हजरत। अच्छा जी, मेरे सामने ये सूरत हाल आ रही है कि शादी में इस वक्त कोई रुकावट नहीं है, शादी बिल्कुल तैयार है उनकी। और मैं अगर यहाँ पे कोई आपको वजीफा बताऊंगा तो सिर्फ खैर व बरकत के लिए बताऊंगा, किसी काम के होने को, कि मेरे तो बिल्कुल तैयार हर चीज नजर आ रही है, हर चीज ओके है। मतलब शादी तो हो जाएगी? ये काम खैर खैरियत से हो जाए, इसके लिए सूरह यासीन पढ़ लिया करें एक मर्तबा, और बाकी मुझे आप तकरीबन कोई 10-15 दिन तक कॉल करके बताइएगा भी। इंशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी खबर है, जैसे हज़रत ने फरमाया कि बहुत जल्द उनका इंशाल्लाह रिश्ता भी हो जाएगा, और खैर व आफीत के लिए उन्होंने आपको बता दिया कि सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें ताकि तमाम मामलात खैरियत से तय पा जाएँ। अली नजब साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए। अली नजफ जाफरी बोल रहा हूँ। जी जी। पेंसिल्वेनिया से। जी। तो जनाब हजरत से मेरा ये सवाल है कि मुझे 6 हार्ट अटैक हुए हैं।
जी जी। और दूसरा मुझे गुस्सा बहुत आता है, और तीसरा ये है कि मेरे जनाब कारोबार में 5 स्टोर थे जो 4 ज़ाया हो गए और एक मैंने अपने बेटे को दे दिया है। तो हजरत साहब देखें ये मुझे बीमारी है क्या है? मैं पेंसिल्वेनिया से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा माजरत खा हूँ कि हमारा जो स्काइप का सिलसिला मुनक़ता हो गया हज़रत से, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आप 319 दफ़ा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका जो आप अमल शुरू कर दें, हज़रत की भी इजाज़त है, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी तमाम मुश्किलें अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। बाकायदगी के साथ आप 319 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप इसका जो है ना अमल आप शुरू कर दें, और कोशिश करें कि अगले इतवार अगर आप हमें कॉल कर सकें, और या आप वेबसाइट पे जाके हज़रत से अपना मसला बयान कर दें और वहाँ फॉर्म फिल कर दें, अपनी इन्फॉर्मेशन भी लिख दें, तो इंशाअल्लाह हज़रत आपसे रब्ता कर लेंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ 1 घंटा गुजारा। तो इंशाअल्लाह अगली इतवार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। प्रोग्राम के दौरान अगर अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुज़ूर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए मैं अल्लाह और अल्लाह के बंदों से माज़रत का तलबगार हूँ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पज़ीराई और आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। अगले इतवार रात 9 बजे आज USA TV पर आपसे फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।